Hello dear friends, welcome to this live mathematics lecture, chapter number 9, differential equation, part 3 में आपका स्वागत है. Yes, good morning to all of you dear friends. आज के सेशन की शुरुआत हम करते हैं इलस्ट्रेशन 13 से. Find the equation of curve passing through the point -2, 3. Given that the slope of tangent to the curve at point xy is 2x upon y square. सबसे हम पहले ये कहेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट to the curve at point x, y is dy by dx हम कहेंगे and which is given 2x upon y square. यहाँ पर हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करेंगे. y square into dy is equal to 2x into dx. Integrating both sides, integration of y square dy is equal to 2 into x dx. Y cube upon 3 is equal to 2 into x square by 2 plus c. Give it equation number 1. But the curve, ये है जनरल इक्वेशन ऑफ द कर्व, बट इट इज पासिंग थ्रू point -2, 3. So x is replaced by -2 and y is replaced by 3. 3 cube upon 3 -2 cube plus c. 9 minus 4 is equal to c. Therefore c is equal to 5. Substitute in equation number 1. Y cube upon 3 is equal to x square plus 5. ये जो इक्वेशन है इज required solution or the required equation of the curve. चलिए, क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? ऐसे और क्वेश्चन लेंगे एक्सरसाइज 9.4 में. एग्जाम्पल नंबर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नंबर 15, नंबर 16, नंबर 17. डू योर सेल्फ, आपको खुद ही प्रैक्टिस करना है. फिलहाल हम एग्जाम्पल नंबर 18 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. द at any point xy of a curve, slope of the tangent. सबसे पहले slope of tangent of a curve at point xy पॉइंट ऊपर जो स्लोप है वो है dy by dx. क्या आप समझ रहे हैं? दूसरी बात, ये जो स्लोप है विच इज dy by dx is equal to twice the slope of line
passing through contact point and -4 -3, ये क्वेश्चन में कहा है। तो यहां पर जो स्लोप होगा y का डिफरेंस होगा y -+3 x -+4 dy by dx। therefore dy upon y plus 3 is equal to 2 into dx upon x plus 4। यहां से वेरिएबल सेपरेबल मेथड हमने यूज किए हैं। क्या आप एकदम से क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। इंटीग्रेटिंग both sides, dy upon y plus 3 is equal to 2 into integration dx upon x plus 4। यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा log of y plus 3 2 into log of x plus 4। देखिए दोस्तों, प्लस सी भी लिख सकते हैं या तो फिर log of c भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। चलिए, अब ये जो कर्व है वो कहा गया है कि कौन से पॉइंट में से पास हो रहा है। अच्छा, फिर भी यहाँ पर हम c के बदले log c लेंगे। देखिए, log of x plus 4 whole square plus log c by using the property of logarithm log of y plus 3 is equal to log of c into x plus 4 whole square। log is one function, so y plus 3 is equal to c into x plus 4 whole square। इक्वेशन नंबर हम कहेंगे 1 is the general solution of the given differential equation, but this curve it is passing through, एक कौन से पॉइंट में से पास हो रहे हैं? passes through point -2, 1। so 1 plus 3 is equal to c into -2 plus 4 whole square। 4 is equal to 4c, therefore c is equal to 1। put it in equation number 1, so we get y plus 3 is equal to 1 into x plus 4 whole square, इक्वेशन नंबर 2। ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व, ये है पैराबोला। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? तो इस तरीके से हम कर्व का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। आप एक बार अच्छी तरह देख लीजिए। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 19 की ओर। द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून, सबसे पहले बात करेंगे इफ रेडियस इज आर देन वॉल्यूम ऑफ
spherical balloon V is equal to 4 by 3 pi r cube इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से, this volume of the balloon being inflated changes at the constant rate। सबसे पहले dv by dt लेंगे तो 4 by 3 constant, pi constant and 3r square into dr by dt। So dv by dt is equal to 3 cancel, 4 pi r square dr by dt नंबर 2। यहाँ पर क्या कहा है, बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम dv upon dt is equal to a which is constant। यहाँ पर वॉल्यूम और टाइम की बात होती तो हम ये न करते, सीधे ही इस पर चले जाते, लेकिन क्वेश्चन में आगे रेडियस एंड टाइम का डिस्कशन है, इसीलिए हमें ये फॉर्मूला डिराइव करना होगा dv upon dt। नाउ 4 pi r square dr by dt is equal to a। 4 pi r square dr is equal to a into dt। Again integrating both sides, integration of 4 pi r square dr integration a dt। यहाँ पर 4 पाई कांस्टेंट है, आर क्यूब अपन 3 होगा, ए कांस्टेंट, dt का इंटीग्रेशन होगा t प्लस सी, गिव इट इक्वेशन नंबर 1। अब ये कहा है इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट। व्हाट इज इट मीन? इनिशियली मीन t इज इक्वल टू 0, रेडियस इज इक्वल टू 3 यूनिट। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 4 पाई r का मतलब होगा 3 क्यूब अपन 3 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस c। देयरफॉर c इज इक्वल टू 36 पाई। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, so we will get 4 pi r cube upon 3 is equal to 80 plus c means 36 pi। give it equation number 2। चलिए यहाँ तक आगे बढ़ गए हम। अगेन क्या कहा है, आफ्टर 3 सेकेंड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड लेते हैं, रेडियस बिकम 6 यूनिट, रेडियस 6 यूनिट हो जाती है। सो 4 पाई इंटू 6 क्यूब अपन 3 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 36 पाई। यहाँ पर ये वैल्यू जो है 6 का जो क्यूब है 6 इंटू 6 36 अपन 3 12, 12 फोर जा 36, सिक्स क्यूब लेना है हमें यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो यहां पर आगे हमें मिलेगा क्या, $288 पाई माइनस 36 पाई इज इक्वल टू 3a। देयरफॉर 3a इज इक्वल टू 252 पाई। So a is equal to 84 pi। Clear? Put in equation number 1, 4 pi r cube upon 3, 84 pi into t 36 pi। Then find the radius of the balloon after t second। मतलब रेडियस
और t के बीच का रिलेशन हमें चाहिए। यहाँ से 4 पाई कॉमन, r³/3, अगेन यहाँ से 4 पाई कॉमन, 21t + 9, r³ = 63t + 27. So r = 63t + 27 raised to 1/3. ये है relation between radius and time. So after t second, radius will be cube root of 63t + 27. क्लियर दोस्तों? एकदम से क्लियर, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 14। ये सारे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करने वाले क्वेश्चंस है। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूअस एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। हम ये कहते हैं लेट P be the principal at any time t। यहाँ पर t is in year and P is in rupees। rate of change of P, rate of change of P dP/dt 5% of P every year। dP/dt is equal to 5/100 into P। P वाले एक साइड 1/20 into dt। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स 1/20 dt। log P is equal to 1/20t plus C1। So P is equal to e raised to t/20 plus C1 is equal to e raised to t/20 into e raised to C1। ये कांस्टेंट, तो ये exponential term also will constant। So P is equal to, and such constant denoted as C, e raised to t/20। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे इक्वेशन में सबसे पहले हमें एक इक्वेशन तो फॉर्म करना ही होगा। इन हाउ मेनी ईयर्स ₹1000 डबल इटसेल्फ। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे एट अ टाइम t इज इक्वल टू 0 प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल टू 1000। सो 1000 इज इक्वल टू c इंटू e रेज टू 0/20 विच इज c। इट मीन्स c इज इक्वल टू 1000 पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमें एक स्टैंडर्ड इक्वेशन मिला, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1000 इंटू e रेज टू t/20 इक्वेशन नंबर 2। एट व्हाट टाइम दिस वैल्यू कैन डबल, मतलब 1000 के डबल क्या होंगे तो 2000। सो 2000 इज इक्वल टू 1000 e रेज टू t/20। अब यहां पर दोनों साइड लॉग ले सकते हैं। log to the base e is equal to t/20।
So t is equal to 20 into log to the base e year. So प्रॉपर आंसर लाना है तो 20 इंटू लॉग टू द बेस ई 0.6931 ऐसा कुछ आंसर मिलता है। 2683 तो ये वैल्यू मिलेगी। तो इतने ईयर्स में ये वैल्यू डबल होगी यदि रेट 5% रहा तो। देखिए दोस्तों, ये सोशल लाइफ में इम्पोर्टेंस है, ऐसा एग्जाम्पल है। काफ़ी बार हम बैंक में भी जाते हैं तो लेकिन फिर भी हम जान नहीं पाते हैं, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन करके काफ़ी अच्छी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, एक्सरसाइज 9.4 में एग्जाम्पल नंबर 20, 21 डू योरसेल्फ आपको खुद ही प्रैक्टिस करना है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 में। इसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन फिर भी देखते हैं। इन अ कल्चर ऑफ बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख। ये इनिशियली काउंट है। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, लेट क्वांटिटी ऑफ बैक्टीरिया is P at a time T. How many hours will be count to reach 2 lakh if the rate of growth of bacteria, rate of growth of bacteria is proportional to the number of bacteria present at that time. dP upon dt is equal to K into P. Here K is the proportionality constant. Rate of growth is equal to dP by dt. dP upon P is equal to K into dt हम कह सकते हैं। दोनों साइड इंटीग्रेशन लेंगे तो dP अपन P is equal to K इंटीग्रेशन dt। log P is equal to K into T प्लस हम C1 कहेंगे। now P is equal to e raised to KT plus C1 means e raised to KT into e raised to C1. e raised to C1 consider as one another constant, so P is equal to C into e raised to KT. इट्स इक्वेशन नंबर 1। किसी भी तरह से आपको दोस्तों इस इक्वेशन में आ जाना है। रेट इंक्रीज होता है तो पॉजिटिव, डिक्रीज होता है तो नेगेटिव। चलिए, इनिशियली ये जो क्वांटिटी है वो है 1 लाख, तो इसका मतलब होगा 1 लाख इज इक्वल टू सी इंटू ई रेस टू 0 होगा। ई रेस टू 0 का मतलब तो 1 ही है, तो C मतलब क्या मिला हमें, 1 लाख क्वांटिटी। इसे इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी विल गेट P इज इक्वल टू 1 लाख इंटू ई रेज टू के टी, इक्वेशन नंबर 2। चलिए, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब क्या कहा है, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया विल इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स। इन 2 आवर्स population or this quantity will increase by 10%, means 1 लाख तो थी ही, उसमें 10% इंक्रीज हो गई, तो 10% ऑफ 1 लाख हम कहेंगे। तो 1 लाख प्लस 10,000, तो 1 लाख 10,000 ये होगी वैल्यू P।
इक्वेशन 2 में इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इज इक्वल टू 1 लाख इंटू ई रेज टू के टी, 4 टाइम 0 कैंसल, 11/10 e raised to kt. Therefore, kt is equal to log of 11/10 to the base e, and this t is equal to 2 hours. तो हम यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर 2. So k is equal to 1/2 into log of 1.1. इस तरह से हमें k वैल्यू मिलेगी. दोस्तों, यहां तक सब कुछ क्लियर है? क्या आप क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ सकते हैं? ओके दोस्तों, अब क्या है, हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख. मतलब हमें टी फाइंड करना है व्हेन द काउंट बिकम 2 lakh. So again from equation number 2 is equal to 1 lakh into e raised to kt 2 log 2 base e is equal to kt log 2 base e, k is equal to 1/2 log of 1.1 into t. So t is equal to 2 into log 2 the base e divided by log 1.1 to the base e hours. तो इतने टाइम में ये जो क्वांटिटी है काउंट विल डबल और इट बिकम 2 lakh. क्लियर दोस्तों? क्या आप समझ सकते हो? तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना होगा. इनिशियल में क्वांटिटी क्या है, क्या हो रही है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों. चलिए आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल नंबर 23 में फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस वाई. इसका मतलब होगा ई रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू वाई. एक्स और वाई वाले टर्म सेपरेट कर सकते हैं. dy अपॉन ई रेज टू वाई, ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स. दोनों साइड इंटीग्रेशन लेंगे तो इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स डी एक्स. इसका इंटीग्रेशन ई रेज टू माइनस वाई अपॉन -1 ई रेज टू एक्स एज इट इज प्लस सी. ई रेज टू माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू एक्स माइनस सी. -c1 के बदले हम नया कोई कांस्टेंट ले सकते हैं और इसे लेके जाएंगे लेफ्ट साइड पर. So here we have e raised to x plus e raised to minus y is equal to c. ये है सही आंसर and which is given in option A. ऑप्शन ए में ये आंसर दिया गया है. आप ध्यान से देखिए दोस्तों, एकदम सिंपल तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं. चलिए क्लियर. अब नए थियरी पॉइंट में हमें समझना है दोस्तों, होमोजीनियस
डिफरेंशियल इक्वेशंस। होमोजीनियस मतलब ऐसा इक्वेशन, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई, इसका मतलब ये जो फंक्शन है एक्स एंड वाई के कॉमन फॉर्म में है, लेमडा रेज टू एन एफ ऑफ एक्स वाई। इट इज नोन एज होमोजीनियस इक्वेशन, नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है होमोजीनियस इक्वेशन हैविंग इंडेक्स n। It is a homogeneous function or equation of degree n। n डिग्री वाला ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। ये नॉन जीरो टर्म है लेमडा, x कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन हम ले सकते हैं, लेकिन जब बात करेंगे हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो dy बाई dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई जी ऑफ एक्स कोमा वाई। दोनों में y की टोटल पावर x की टोटल पावर सेम होगी, इससे हमें पता चल जाएगा कि होमोजीनियस। अब देखिए यहाँ पर dy बाई dx है, सो इट्स अ कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे इक्वेशन को हमें सॉल्व कैसे करना है, फॉर एग्जांपल dy बाई dx इज इक्वल टू जी ऑफ y अपन x। ऐसे इक्वेशन में y बाई एक्स या x अपन y हम बैलेंस कर सकते हैं, तो y अपन x होगा तो y अपन x इज इक्वल टू ऑलवेज यू विल टेक v, सो y इज इक्वल टू v इंटू एक्स, बट v रिक्वायर dy बाई dx। यहाँ पर देखिए y का न्यू वेरिएबल v में आ जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू v कॉन्स्टेंट x का 1, x कॉन्स्टेंट v का डेरिवेटिव होगा dv बाई dx। सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन, यहाँ रखने से क्या मिलेगा, v प्लस एक्स इंटू dv बाई dx इज इक्वल टू g ऑफ v। v को हम लेके जाएंगे लेफ्ट साइड पर, तो वी विल गेट x इंटू dv बाई dx इज इक्वल टू g ऑफ v माइनस v। सेपरेटिंग देम, dv अपन g ऑफ v माइनस v इज इक्वल टू dx अपन x। बाय टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स, ऐसा करके हम इसका सॉल्यूशन ला सकते हैं। दोस्तों, क्या आप अच्छी तरह समझ रहे हैं? चलिए एक जानकारी लेते हैं हम। इलस्ट्रेशन नंबर 15, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस 2y इज होमोजीनियस एंड सॉल्व इट। x की पावर देखिए 1 तो y की भी 1 है, x की यहाँ पावर 1 तो y की भी पावर 1, तो इससे पता चल ही जाता है। फिर भी dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस 2y डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। x यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2 y अपन एक्स, x यहाँ से कॉमन 1 माइनस y अपन एक्स लेंगे। देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू x की पावर होगी 0, 1 प्लस 2 इंटू वाई अपन एक्स एंड 1 माइनस y अपन x। तो ये है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग ऑर्डर और डिग्री 0। homogeneous differential equation having degree 2, clear? sorry degree 0, not 2 but degree 0, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 0 रहेगी।
लेमड़ा भी हम कह सकते हैं, इट डजंट मैटर। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, y अपन x इज इक्वल टू वी लेंगे। सो y इज इक्वल टू हो जाएगा vx, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, v कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1, x इंटू dv बाई dx, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1, v प्लस x इंटू dv बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस 2v, 1 प्लस 2v अपन 1 माइनस v, x इंटू dv बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2v अपन 1 माइनस v हम कहेंगे। चलिए सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस 2v माइनस v प्लस v स्क्वायर अपन 1 माइनस v, x इंटू dv बाई dx बराबर ये। चलिए अब हम वेरिएबल सेपरेट, यहाँ से देखिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड इंप्लीमेंट होगी। क्या आप समझ सकते हैं, 1 माइनस वी डिवाइड बाई 1 प्लस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू डी एक्स अपन एक्स, वी वाले टर्म लेफ्ट साइड, एक्स वाले टर्म राइट साइड पे, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, माइनस हम कॉमन लेंगे v माइनस 1, वी स्क्वेयर प्लस 1 dv इज इक्वल टू डी एक्स अपन एक्स। डिवीजन से एक पावर लेस है तो डिवीजन का डिफरेंशिएशन बैलेंस करेंगे हम बाय मल्टीप्लाइंग 2 एंड डिवाइड 2v माइनस 2, वी स्क्वेयर प्लस 1 dv इज इक्वल टू माइनस dx अपन x। ओके 1/2 2v प्लस 1 माइनस 3 करेंगे क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होगा 2v तो ऑलरेडी है लेकिन प्लस 1 भी चाहिए, तो प्लस 1 ऐसा माइनस 2 के साथ में हो गया माइनस 3, वी स्क्वेयर प्लस 1 dv माइनस इंटीग्रेशन dx अपन x, 2v प्लस 1 डिवाइड बाई वी स्क्वेयर प्लस 1 dv माइनस 1/2 3 dv अपन वी स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस dx अपन x। यहां पर देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, तो इसे हम बना सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर, इसीलिए हमें लास्ट टर्म चाहिए, लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडिल टर्म का स्क्वायर डिवाइडेड 4 इंटू फर्स्ट टर्म, तो लास्ट टर्म हमें चाहिए 1/4, सो 1/2 2v प्लस 1 वी स्क्वेयर प्लस 1 dv माइनस 3/2 dv अपन वी स्क्वेयर प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1 ऑलरेडी है इज इक्वल टू माइनस dx अपन x। चलिए वंस अगेन 1/2 2v प्लस 1 वी स्क्वेयर प्लस 1 dv माइनस 3/2 dv अपन v प्लस 1/2 होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 3 रूट 3/2 होल स्क्वायर हम कहेंगे, माइनस dx अपन x। दोस्तों यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा 1/2 डिवीजन का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है तो इसका हम लॉग लेंगे, लॉग वी स्क्वायर प्लस v प्लस 1 माइनस 3/2, 1 अपॉन a मीन्स रूट 3/2 इंटू 10 इनवर्स v प्लस 1/2 अपन रूट 3/2 इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड ऑफ x प्लस c। चलिए 2 कैंसल, इसे लेंगे पावर में या तो फिर यहां से 2 सबके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए लॉग ऑफ वी स्क्वायर प्लस v प्लस 1 माइनस 3 इंटू 2 6, या तो फिर अभी रूट 3 वैल्यू हो जाएगी
therefore 2 into root 3 tan inverse 2v plus 1 upon root 3 is equal to minus 2 log mod of x plus c। इस माइनस को लेके जाएंगे लेफ्ट साइड पर और इसे लेके जाएंगे राइट साइड पर। log ऑफ v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 प्लस log ऑफ x स्क्वायर 2 का मतलब पावर में जाएगा ये इज इक्वल टू 2 रूट 3 tan इनवर्स 2v प्लस 1 बाय रूट 3 प्लस c। v replaced by its original value v is equal to y upon x। therefore log of y upon x whole square y upon x plus 1 plus log x square is equal to 2 root 3 tan inverse 2v 2 into v का मतलब होगा y upon x plus 1 डिवाइड बाई रूट 3 प्लस c। log दिस प्लस log दिस दोनों का मल्टीप्लीकेशन y स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 रूट 3 tan इनवर्स 2y प्लस x अपॉन रूट 3x प्लस c। एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस कैंसल। फाइनल आंसर इज log mod of x square plus xy plus y square is equal to 2 root 3 tan inverse x plus 2y upon root 3x plus c is the required जनरल सॉल्यूशन। क्लियर दोस्तों, एक बार फिर से क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लीजिए। लंबा क्वेश्चन है लेकिन सिंपल क्वेश्चन है। यदि आप इंटीग्रेशन अच्छी तरह जानते हो तो इस एग्जाम्पल में कोई बात नई नहीं है। आज के वीडियो सेशन में हम सिर्फ इतनी ही बात करेंगे। अगले सेशन में हम आज ही लेने वाले हैं 4 बजे, तो उसमें इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे, नई थियरी देखेंगे, नए क्वेश्चन देखेंगे। फिलहाल आज का जो भी वर्क है उसकी आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।